Assalamu alaikum. Today topic is isomerism and its type. Isomerism is the very common phenomena shown by organic compound. It has basically two main types: constitutional isomerism and stereoisomerism. Basically, constitutional isomers are those which have different structure formula or different arrangement of atoms in the space. Whereas in stereoisomerism, the structural formula is same. Here the different spatial or three-dimensional arrangement of atoms. Constitutional isomers have several types like chain isomerism, position isomerism, functional group isomerism, tautomerism, metamerism, etc. However, the stereoisomerism had the two main types: cis-trans or geometric isomerism and optical isomerism. Now, first one, we will start from the isomerism. Isomerism is the isomers or the organic compounds which have the same molecular formula but different arrangement of atoms or structures. And this phenomena in which these compounds exist having more than two or more structures, such phenomena is known as isomerism. तो isomers हमेशा दो से ज्यादा स्ट्रक्चरल फार्मूला शो करते हैं और इस फिनोमेना को जिसमें टू से ज्यादा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करे, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म. Isomerism is divided into two main types: constitutional and stereoisomerism. Now, first one, constitutional or structural isomerism. In constitutional isomerism, molecules have same molecular formula but have different structural formula. इसमें मॉलिक्यूल का किसी भी कंपाउंड के उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा, एंड दिस स्ट्रक्चर फार्मूला इज डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. द constitutional isomerism is divided into following types: chain isomerism, position isomerism, functional group isomerism, metamerism, and tautomerism. Now we will start first from the chain isomerism. In chain isomerism, the compound have the same molecular formula but different structure. ठीक है, just like आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेक्सेन C6H12 इसके different structure possible हैं. एक structure इस तरह से कि all carbon atoms are present in the straight chain और इसमें 6 carbon atoms straight chain में, therefore it is named as the N-hexane. अगर इसी तरह इसी में एक कार्बन एटम ब्रांच की शक्ल में चला जाए, ठीक है, जस्ट लाइक आप इसको देखें कि इसमें भी 6 कार्बन एटम है, ये 5 कार्बन एटम चेन की शक्ल में है और एक कार्बन एटम ब्रांच की शक्ल में है, तो इसको हम अब आइसोहेक्सेन कहेंगे या 2-मिथाइल पेंटेन कहेंगे. तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मगर फर्क ये है कि एक के स्ट्रक्चर में सारे स्ट्रेट चेन कार्बन एटम है और दूसरे में एक कार्बन एटम ब्रांच की शक्ल में प्रेजेंट है. इसी तरह एक और एग्जांपल पे आते हैं कि इसमें जो ब्रांच की पोजीशन है वो यहाँ पर कार्बन नंबर 2 से चेंज होके कार्बन नंबर 3 पे आ गई. जब कार्बन एटम कार्बन नंबर 3 पे आ जाता है तो ये आपके पास 3-मिथाइल पेंटेन बन जाएगा. इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं कि इसमें हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं और 2 ब्रांचेस एट द सेम कार्बन एटम है. यहाँ पर आपके पास चेन में 4 कार्बन एटम है और 2 मिथाइल ग्रुप की ब्रांचेस हैं, तो ये 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा. हेक्सेन का एक और आइसोमर है कि इसमें जो मिथाइल ग्रुप की पोजीशन है, एक कार्बन नंबर 2 पे दूसरी कार्बन नंबर 4 पे, तो इसमें भी लॉन्ग चेन में 4 कार्बन एटम है. 4 कार्बन एटम में से 2 और 3 दोनों कार्बन एटम मिथाइल ग्रुप कैरी करेंगे, therefore it is named as 2,3-dimethyl butane. तो इन तमाम कंपाउंड्स में जिसमें हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, इनको हम कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहते हैं. तो कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स में चेन आइसोमरिज्म में भी स्ट्रक्चरल वेरिएशन होती है और इन स्ट्रक्चरल वेरिएशंस को देखने के लिए हम मुख्तलिफ एग्जांपल देखेंगे कि फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल और ले लेते हैं C4H10 ब्यूटेन की. ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स हैं और इन 4 कार्बन एटम्स को हम 2 आइसोमेरिक फॉर्म में लिख सकते हैं. सबसे पहले आइसोमेरिक फॉर्म में
all the 4 carbon atoms present in the straight chain. Therefore, it is named as simple N-butane or simply butane. In the second structure, the 1-methyl group is present in the chain form. Therefore, it is the isobutane or 2-methyl propane. Another example of chain isomerism, we will consider the butanol C4H9OH. ब्यूटानॉल में आपके पास फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, यहाँ पर कार्बन एटम की लेंथ चेंज हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल एक ब्यूटानॉल में जो कार्बन एटम है इसमें 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है और दूसरे में एक कार्बन एटम ब्रांच की शक्ल में प्रेजेंट है, तो देयरफॉर इट इज 2-methyl 1-propanol और ब्रांच चेन आइसोमर्स। द चेन आइसोमर possess the same functional group because belong to the same homologous series। जैसे यहाँ पर आपने अल्कोहल के केस पे देख लिया या अल्केन के केस में, इस तरह दे हैव द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी मगर केमिकली तमाम आइसोमर्स एक जैसे होते हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज इन सबकी सेम होंगी। सेकंड टाइप इज पोजीशन आइसोमरिज्म। इन पोजीशन आइसोमरिज्म कंपाउंड हैव द सेम molecular formula and the same functional group, and the difference is that here the functional group position is different or double bond or triple bond position is different। अब इसकी कुछ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की हम टाइप्स लेते हैं, ठीक है। तो इसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी मगर केमिकली जो फंक्शनल पोजीशन आइसोमर्स होते हैं दे आर आल्सो आइडेंटिकल टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है ब्रोमो अल्केन की C3H7Br या इसको हम ब्रोमो प्रोपेन कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला ब्रोमो प्रोपेन है Br is present at the carbon number 1, so therefore it is the 1 bromo propane। जबकि नेक्स्ट एग्जांपल में जो Br है या फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट है, तो इट इज द 2 bromo propane। अब इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन भी नजर आ रही है कि बॉइलिंग पॉइंट 1 ब्रोमो प्रोपेन का 70.8 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि 2 ब्रोमो प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट 59.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसके बॉइलिंग पॉइंट में तकरीबन 10 डिग्री का डिफरेंस है। तो फिजिकली दे आर डिफरेंट बट केमिकली दे आर alike because the chemical properties depends on the function group। function group दोनों का सेम है, therefore both are the chemically identical। Some other example of position isomers are the alcohols like butanol। In butanol, the functional group is OH। In the first example, the OH is present at the carbon number 1, and in the second example, the functional group is present at the carbon number 2। Another example in which the double bond is present like alkene। In alkene the double bond is present। इसकी एग्जांपल पेंटीन में आप लोग देख सकते हैं कि पेंटीन में पहली पेंटीन में डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर प्रेजेंट है, therefore it is the 1 pentene। and in the second example the double bond or function group is present at carbon number 2, therefore it is the 2 pentene। we will take another example of position isomers like aromatic compound dibromobenzene। dibromobenzene में 2 bromine atom present है। dibromobenzene के 3 position isomers बनते हैं कि दोनों जो bromine atoms हैं they are present at carbon number 1 and 2। the bromine atom is present carbon number 1 and 3 and carbon number 1 and 4। so therefore 1 2 1 3 1 4 डायब्रोमोबेंजीन, इसके हमारे पास 3 एग्जांपल आ जाती हैं या 3 इसके पोजीशन आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ constitutional isomerism is functional group isomerism। In functional group isomerism, the compounds or molecules have same molecular formula, but there are different functional groups are present। अब इस डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये कंपाउंड डिफरेंट होमोलोगस सीरीज या डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हैं
और डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हुए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट होंगी। दे हैव द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। Therefore, these are the different compounds, and here are the example table of such compounds. For example, the first example is alcohol and ether. एक में फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, दूसरे में ईथर है। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एक में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप है। द सेकंड क्लास कंटेन द कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। द थर्ड एग्जांपल इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर कंटेन द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। और इसमें एग्जांपल हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड, मिथाइल इथोनेट और इथाइल इथोनेट की। So these all are the functional group isomers. So functional group isomerism is mostly found in alcohol and ether, aldehyde and ketones, and carboxylic acid and esters. The second main type of isomerism is stereoisomerism. Constitutional and stereoisomerism are the two main types. In stereoisomerism, the compounds have same molecular formula, but here the structure formula is different due to different three-dimensional or spatial arrangement of atoms. Therefore, the stereoisomers differ only in the three-dimensional way. Stereoisomers are classified into two main types: cis-trans isomerism or geometric isomerism and optical isomerism. These are divided into these two main types. Now, the first one is cis-trans isomerism. In cis-trans or geometric isomerism, the compounds have the different position along the double bond, and these compounds, this type of isomerism is almost absent in aliphatic compound or carbon-carbon single bonded compound, and only exist in those single bonded compound which have the cyclic structure, that is alicyclic compound. यानी alicyclic compound या cyclic वो अल्केन्स हैं जिनमें रिंग प्रेजेंट होगा, या डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की एग्जिस्टेंस होती है। दी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म्स हैव सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, और इनकी स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स में आप ये देख सकते हैं कि इनके ज्योमेट्रिक आइसोमर्स किस तरह से बनते हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव द एग्जांपल ऑफ 2-ब्यूटीन। इन 2-ब्यूटीन द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन नंबर 2, और इसके ये 2 पोजीशन आइसोमर्स बन रहे हैं। अब जो सबसे पहला पोजीशन आइसोमर्स है कि इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के एक साइड पे प्रेजेंट हैं, सेम साइड पे प्रेजेंट। देयरफॉर दिस आइसोमर्स नेम्ड एज cis-2-butene। जबकि जो सेकंड में जो 2 मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट अपोजिट टू ईच अदर और अक्रॉस टू ईच अदर, ट्रांस में अक्रॉस होंगे। देयरफॉर दिस इज द trans-2-butene। अब इनकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है कि cis-2-butene has the boiling point of 4 degrees centigrade, whereas the trans-2-butene has the boiling point of 1 degree centigrade. ज्योमेट्रिक आइसोमर्स किसी भी कंपाउंड के वो उस सूरत में नहीं बन सकते कि अगर ये जो ग्रुप्स हैं वो डबल बॉन्ड के, ठीक है, एक क्रॉस की बजाय सेम साइड पे प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल, वी विल कंसीडर द एग्जांपल ऑफ 1,2-डाइक्लोरोइथीन एंड 1,1-डाइक्लोरोइथीन। अब देखो 1,2-डाइक्लोरोइथीन और 1,1-डाइक्लोरोइथीन में फर्क ये है कि इन 1,2-डाइक्लोरोइथीन द 2 chlorine atoms are present here across the double bond, therefore this is the cis isomer। और यहाँ पर दोनों जो 1,2-डाइक्लोरोइथीन में दोनों क्लोरीन एटम एक अपोजिट टू ईच अदर एक क्रॉस द डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये ट्रांस आइसोमर है। जबकि ये जो एग्जांपल है 1,1-डाइक्लोरोइथीन, ठीक है, ये पोजीशन आइसोमर तो हो सकता है, ज्योमेट्रिक नहीं, कि इसमें दोनों क्लोरीन एटम प्रेजेंट है ऑन द सेम कार्बन एटम, देयरफॉर दिस इज नॉट अ ज्योमेट्रिक आइसोमर। इसी तरह 1,1,3-डाइक्लोरोइथीन ये भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करेगा। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या ग्रुप्स हैं वो डबल बॉन्ड के सेम साइड या डबल बॉन्ड के एक क्रॉस इनका प्रेजेंट होना जरूरी है।
Now, cis-trans isomerism in some cyclic compound. We can see example of cis-trans isomerism in cyclic compound. For example, here the dimethyl cyclohexane. Dimethyl cyclohexane में two methyl groups are present at the same site. Therefore, this one is the cis isomer, and this dimethyl cyclohexane is the trans isomer, क्योंकि दोनों CH3 ग्रुप एक दूसरे के एक क्रॉस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये भी आपके पास 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन सिस और ट्रांस फॉर्म है। ये आपके पास 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन की सिस और ट्रांस फॉर्म। तो सिस ट्रांस में आपने सिर्फ जो ग्रुप्स हैं या सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी पोजीशन को एक क्रॉस द डबल बॉन्ड या at the same site along the double bond observe करना होगा। The another type of stereoisomerism is optical isomerism. Optical isomers वो isomers होंगे जो कि plane of polarized light को rotate कर सकते हैं। These are the substances that can rotate the plane of polarized light. अब plane of polarized light को जो भी substance यानी either in the solid state crystalline form or in the solution state rotate कर ले वो optical isomer है। अब आप देख रहे हैं कि अगर ये plane of light को rotate करते हैं towards the right तो इसको dextro-rotatory isomer कहेंगे, और अगर towards the left rotate करेगा तो ये levo-rotatory isomer होगा। तो dextro और levo-rotatory isomers को प्लस और माइनस सिंबल से भी शो किया जाता है। The optical isomers possess the same structural formula like the constitutional isomers, but they have the different three-dimensional spatial arrangement. Therefore, those optical isomers which can rotate the plane polarized light towards the clockwise direction, they are dextro-rotatory or plus isomer, and that can rotate the plane polarized light in the anti-clockwise or counterclockwise manner. They are levo-rotatory isomers or negative isomer. तो levo और dextro-rotatory plane polarized light की आप रोटेशन से इनको सजेस्ट करते हैं। ठीक है, और ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और जो सब्सटेंसेस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस तरह से रोटेट नहीं कर सकेंगे उनको हम ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस प्लस और माइनस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इन दोनों फॉर्म्स को हम एनहांसमेंट भी कहते हैं। क्लैरिटी इज द इंपॉर्टेंट फीचर फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब क्लैरिटी है क्या चीज कि जो सब्सटेंसेस जितनी भी वो अपनी मिरर इमेजेस बना सकते हैं वो कायरल है। तो मिरर इमेजेस बनाने वाले कंपाउंड यानी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज पोजेस करते हैं, कायरल कहेंगे, जबकि एक कायरल सब्सटेंसेस नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं बना सकते। इसकी सबसे आसान निशानी ये होती है कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे वो कंपाउंड कायरल होगा, और अगर उसमें 2 या मोर आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट होंगे देन दिस कंपाउंड विल बी achiral. For example, look here the example of 1,2-dichloropentane. 1,2-dichloropentane, the both chlorine atoms are present, ठीक है, in the same side of the plane and their mirror reflections are superimposable. Therefore, they are achiral. जबकि ये जो 1,2-dichloroethane है ट्रांस आइसोमर है, इसमें the both chlorine atoms are present at opposite side of the plane and they are the superimposable. Therefore, this compound is chiral. तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्टली जितने भी सिस आइसोमर्स होते हैं वो achiral होंगे, जबकि ट्रांस आइसोमर्स chiral होते हैं। अब इनकी जो हैंडेडनेस प्रॉपर्टी है उसको हम देख सकते हैं कि हैंडेडनेस प्रॉपर्टी में ये ज्यादा क्लियर है कि जो लीवो और डेक्स्ट्रो-रोटेटरी में जो लेफ्ट हैंड होगा वो मिरर रिफ्लेक्शन में आपको राइट हैंड के तौर पर नजर आएगा, या जैसे आपको बताया कि जिसमें भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे वो कंपाउंड कायरल होगा, और इनकी हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगी।
तो इसकी एग्जांपल में आप ये 2-ब्यूटानॉल की फिगर देख सकते हैं। ये 2-ब्यूटानॉल में दी एसिमेट्रिक और कायरल कार्बन जिसके ऊपर ये स्टेरिक निशान लगा हुआ है, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है और 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे की मिरर रिफ्लेक्शन, जस्ट लाइक द लेफ्ट हैंड इज mirror image of the right hand, and therefore these are the optical isomers.